Largest transport MOU signed. Switch and Celsius. Largest electric coal chain fleet. India's transportation सबसे बड़ी दुविधा थी will कि हम take enable 3PL coal supply chain solution provide and प्रोडक्शन कर site. पा रहे थे वी कुड सेंड इट टू द लार्ज सेंटर्स लेकिन वहां से दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ पंचलाल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंडिया में लास्ट माइल इकोसिस्टम ही लैक करता है स्पेशली रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशंस में बड़े शहरों में सिर्फ नहीं छोटे शहरों में तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है सो इसका जो डिमांड है ये डिमांड हर बड़े इंडस्ट्री छोटे इंडस्ट्री जो इन सब शहरों को सप्लाई देता है इट कुड बी somebody as big as Parag or Amul or it could be somebody as small as a small ice cream manufacturer in Hyderabad. Last mile solutions in perishable जहां पे भी टेम्परेचर कंट्रोल का रिक्वायरमेंट है एनी प्रोडक्ट ये सब जगह यूज होता है एक बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में ये है कि आपके पास जब भी कोई कोल्ड प्रोडक्ट पहुंचता है वो कोल्ड नहीं रहता ये क्वालिटी इशू काफी जगह पे हाईलाइट हुई है जहां पे आप आइसक्रीम से लेके मीट से लेके वेजिटेबल से लेके मेडिसिन से लेके इट शुड रीच कोल्ड टू यू बट दिस फेल्स इन द लास्ट माइल सेगमेंट सो सेल्सियस हैज टेकन अ स्टेप टू इंक्रीज आवर लास्ट माइल फ्लीट ऑल अक्रॉस इंडिया इन मेजर टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज ताकि हम ये इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें सो डिमांड इज फ्रॉम आवर कस्टमर्स एज वेल एज फ्रॉम द मार्केट वी वर करंटली हैंडलिंग using fossil fuel vehicles, we are now shifting slowly towards electric vehicles. Obviously, fuel vehicles will still remain, but we are hoping over the next 3 to 5 years as we start phasing out fuel vehicles and bringing more and more electric vehicles, the adoption increases and obviously the carbon credits that we generate from this, we will then be able to give it to them. So ESG compliance is a big thing for every company now, including us. So this becomes a very ESG compliant, good for the environment, a green solution that we offer. Thank you, sir. Thank you. Well, ma'am, anything that you are doing to take a step towards a greener future, more sustainable future? For existence, we like to become carbon neutral in entire totality. This not only talks about the way how we manufacture, how we operate as a whole industries ecosystems as well. So similar to us, there are a lot of industries who are actually taking this initiative. Most of them are on 2050s. So these particular activities like what Celsius is doing, what the way, how we are bringing up the product in every segment, this is going to help us to reach those targets in a much more quicker manner. So operational level, it has to be 2030, which is not far off. The supplies which are going to come inside and outside would be having the next level of operation activity. So in order to reach that mega goal of what Prime Minister aspiring to be, I think these are the steps which I would call it as not only a baby steps, it's a giant step which will convert it to be over a period of time. I'm sure this is going to really give a huge benefit to the entire society as a whole. So again, first of all, we are already manufacturing it in India. We are Make in India company and we have been always. आज हम इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर फ्लीट लॉन्च कर रहे हैं और स्विच मोबिलिटी के साथ हमारा 350 गाड़ियों का MOU साइन हुआ है तो आज हम हमारा मेन मुद्दा ये है। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं आप आने वाले फ्यूचर में? ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हमारा पहला स्टेप इंडिया का जो विजन है टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री उसके तरफ ये हमारा रेफ्रिजरेटेड सॉल्यूशन में हमारा पहला कदम है। आपके पार्टनरशिप से लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट हम होप कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल में हम काफ़ी चेंज देखें जहाँ पे नॉर्मल फ्यूल व्हीकल्स आस्ते आस्ते EV की तरफ कन्वर्ट हो जाए। ये हम पहली बार कर रहे हैं बट पूरी इंडस्ट्री हमें फॉलो करे, ये एग्जाम्पल से चले और सॉल्यूशंस निकले, यही हमारा फ्यूचर हो। अभी तक इस तरह के वाहन जो कुछ ये गाड़ियाँ जो हम आज लॉन्च कर रहे हैं लास्ट माइल के लिए ही है और कोरोना के टाइम पे कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हम लास्ट माइल में वैक्सीन पहुंचा नहीं पा रहे थे तो इस रेंज में इस फ्लीट को जब भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं ये वो लास्ट माइल सोल्यूशन ही सॉल्व कर रहा है। अच्छा सर, मार्केट में जिस तरह और भी EV चल उनसे किस तरह का कंपटीशन रहेगा? मार्केट में रेफ्रिजरेटेड EV व्हीकल ये पहला है। EV व्हीकल काफ़ी है
उसका कंपटीशन, उसके डिफरेंसेस तो गणेश सर ज़्यादा बता पाएंगे। बट रेफ्रिजरेटेड ईवी व्हीकल स्विच मोबिलिटी ने पहली बार निकाला है और सेल्सियस ने ये पहला फ्लीट बनाया है। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे आपने कहा कि ये पहला जो गाड़ी है जो हर तरह से स्विच मोबिलिटी जो है पिछले 4 साल में बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए हैं और इनोवेशन एक हमारा एक मूल मंत्र है। उसके हिसाब से आज जो हमारे सेल्सियस के साथ जो गाड़ियाँ रीफर की जो गाड़ी लेके आ रहे हैं वो 3.49 टन की गाड़ी होगी। इसके अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2 प्लग अलग अलग से देंगे, जिससे कि जब चार्ज होगी साथ साथ में वो रेफ्रिजरेटर यूनिट को भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो साथ साथ जब चलेंगे तो ताकि अननेसेसरली वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो करंट है वो ना ले पाए। और दूसरी बात, इसकी वजह से कम 30 से 35% का डायरेक्टली TCO का बेनिफिट भी मिलेगा। ये जैसे इस टाइप की बहुत सारे एक्टिविटीज चलते रहेंगे और ये तो अभी शुरुआत है हमारा, और आगे आने वाले समय में हम इस टाइप की प्रोडक्ट और भी लॉन्च करेंगे। खासियत की बात की जाए तो जो और ईवी व्हीकल है उनसे बात तो ये है कि हम लोग 3.49 टन में पहली बार इस मॉडल को लॉन्च किया है। 1500 के करीब हमारी मॉडल चल रही है और पूरी तौर पे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे स्विच मोबिलिटी की तरफ से देखें कम से कम हमारे पास तो 3000 प्लस बसेस और LCV और ELCV की तरफ से गाड़ियाँ मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि 200 मिलियन किलोमीटर ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हमारा हैं ये फेज 1 और हमारा अभी तक का हमारा जो एक्सपीरियंस है क्योंकि हम अपने हिसाब से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और कस्टमर्स की काफ़ी अच्छी जो फीडबैक मिल रही है उससे क्लियरली दिखता है कि ड्राइवर भाइयों के लिए कितना कंफर्टेबल है। सो ईवी जब चलाते हैं तो उसमें आप तो पहली बार गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला और उसके हिसाब से मोर ओवर जिस तरह से पिकअप का हमारे जो प्रोग्राम है BMS जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं, गाड़ी ढक गया रोल। एक साथ भी एक और भी था ना फ्लैग उठाइए। या